हेलो एवरीवन। आज की क्लास में वी विल डिस्कस द ट्रिग्नोमेट्री। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड देन वी विल डिस्कस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज and after that we will discuss the law of sine, and at the end we will discuss the practice questions related to law of sine and cosine. But what we have discussed in the last class? In last class we have discussed the past paper questions related to mensuration, and then we have wrap up the topic mensuration. If you have missed the lesson you can see the link in the description. बल्कि अगर आपने कोई भी लेसन मिस किया है तो you can see the link in the description. So let's start our class. So what is trigonometry? Trigonometry is a word. Trigonon means triangle plus metron means measure. So trigonometry is all about triangles, जिसके अंदर we will discuss that how to find out the sides and angles of a triangle. So और इसके अलावा we will discuss the area, how to find the area of triangle, right angle triangles का भी और दूसरे triangles का भी, और किसी भी triangle की 3 sides और 3 angles involve होते हैं. So we will discuss in trigonometry, we will discuss the sides and angles of a triangle. In other words, you can say it is all about triangles. So trigonometry help us find angles and distances and is used a lot in science, engineering, videos, games and more. So first of all we will discuss the right angle triangle. Right angle triangle कौन से ट्राइंगल होते हैं जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, एंड दिस कर्व शोज यू, दिस बॉक्स शोज यू that this angle is of 90 degree. So the angle opposite to the 90 degree, the side opposite to the 90 degree will be called hypotenuse. So you can see here that the side opposite to the 90 degree angle will be called hypotenuse. So this side will be called hypotenuse. Now it depends if your triangle is like this. If your triangle is like this and if this angle is of 90 degree, then this side will be called hypotenuse. So it should be very clear that the side opposite to the 90 degree will be called hypotenuse. Now the next thing is जिसमें students confuse होते हैं वो ये है कि let's say if the side opposite to the required angle will be called the opposite side, or you can say perpendicular side. So this side will be called perpendicular side. Remember one thing that with respect to theta this side is called perpendicular, but let's say if we are discussing about this angle alpha, so with respect to alpha this side will be called perpendicular. So let's say first of all let's discuss it that with respect to theta के opposite side जो होगी वो perpendicular है, और दूसरी जो लास्ट अदर साइड होगी वो adjacent side, या you can say base, it will be the base. But अगर हम अल्फा के पर्सपेक्टिव से देखें, with respect to अल्फा देखें, so the side opposite to alpha will be called adjacent और perpendicular, opposite और perpendicular, और जो उसके साथ अपोजिट जो तीसरी साइड होगी that will be called base. Now let's discuss the trigonometric ratios. The main functions in trigonometry are sine, cosine and tangent. So they are simply one side of right angle triangle divided by another side. So let's say you can see if this is the triangle. Now we will discuss it with respect to theta.
So sin theta will be called perpendicular by hypotenuse, or you can say opposite by hypotenuse. Cos theta will be called adjacent by hypotenuse, or you can say base by hypotenuse. And tan theta will be called perpendicular by base. So basically यही तीन रेशोज जो है वो यूज होंगे. अदरवाइज साइन थीटा का अपोजिट जो है वो कोसाइन होता है, कोसाइन का जो है वो सीकेंड होता है, और टेन थीटा का जो है वो कॉट थीटा होता है. बट मोस्टली यू मस्ट नो अबाउट एटलीस्ट दीज थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, कि जिसमें आपको पता हो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा एंड टेन थीटा का. जो इसके रेसिप्रोकल्स हैं, जो अदर तीन जो इसके रेसिप्रोकल्स हैं, उनको हम यूजुअली 4024 में इतना उनका यूज़ नहीं है. अदरवाइज वी नेवर निगलेक्ट देम. कि साइन थीटा का अपोजिट है कोसाइन थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सीकेंड थीटा, एंड टेन थीटा का कॉट थीटा. तो अगर वो नाम अगर आपके सामने आ जाए कभी किसी भी क्वेश्चन में, तो आपने उससे परेशान नहीं होना. जस्ट ये देखना है कि इसका रेसिप्रोकल ही है. नाउ लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन that let's say if you have a tree जिसकी हाइट आपको नहीं पता, and you know that the angle, जो एंगल टॉप्स के साथ वो बना रहे हो 45 डिग्री है, और you can say the length the other side is 20 डिग्री. now इस क्वेश्चन में अगर आपको हाइट फाइंड करनी हो तो how you can find it out, उन्हीं तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को यूज करते हुए you have to find out the height. now height will be equals to, now अगर आप इसमें ये देखें, लेट्स से साइन थीटा यूज करें, सो इट विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. सो सबसे पहले तो आप अपनी साइड्स को आइडेंटिफाई करें. लेट्स से ये 45 डिग्री है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये होगी परपेंडिकुलर साइड. इट मींस आवर हाइट इज परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री है. So that is why this side will be called hypotenuse. Now we will use the sine 45 to find out the solution. So sine 45 will be equals to opposite by hypotenuse, or in other words perpendicular by hypotenuse. So आप just simply इसको कैलकुलेटर पे यूज करेंगे, और you can say that. नाउ लेट्स डिस्कस द लॉ ऑफ साइंस. ये जो चीज़ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस किए थे, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए था. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में यू कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड द सेकंड थिंग इज लॉ ऑफ साइन. लॉ ऑफ साइन क्या होगा, वी विल यूज इट फॉर दोज ट्राइंगल विच आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल. जो राइट एंगल होंगे उस पर हम यूजुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही यूज करेंगे. लॉ ऑफ साइन ऑल्दो की राइट एंगल ट्राइंगल पे भी एप्लीकेबल है, बट फॉर क्लैरिटी वी विल यूज इट फॉर दोज ट्राइंगल विच आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल. लेट्स से दिस साइड is not a right angle triangle. Now अब यहाँ पे जो एंगल ए के अपोजिट साइड होगी उसको हमने स्मॉल ए से शो किया है. इसी तरह एंगल बी के जो अपोजिट साइड है इसको हमने स्मॉल बी से शो किया है, और एंगल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से शो किया है. नाउ स्मॉल ए बी एंड सी आर साइड्स, एंड कैपिटल ए बी एंड सी आर एंगल्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, now you can see the law of sine states that the ratio of sides to the sine of opposite angle will be same. so इसमें sometimes आपको जो रेशियो मिलेगी वो sometimes आपको इस फॉर्म में भी मिल सकती है, या लॉ ऑफ साइन जो है आपको मिलेगा वो इस फॉर्म में भी मिल सकता है. साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय a small a equals to sine of angle B divided by small b equals to sine of angle C
डिवाइडेड बाय स्मॉल सी। तो ये तीनों केसेस आपको मिल सकते हैं इसमें। दोनों फॉर्म के अंदर फॉर्मूला यही सेम है और इस फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं है। आप जस्ट इसका कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आप इसको हर क्वेश्चन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं कि जो साइड्स है और उसके अपोजिट एंगल को यूज़ करना है, या इन अदर वर्ड्स एंगल है और उसके अपोजिट साइड्स को यूज़ करना है। Now, well, let's do the calculation for a triangle 1 prepared earlier. Like this one, this is the triangle A. Now, इसमें we will see that is it valid or not. हम law of sine की validity check करेंगे for this triangle. So इसमें you can see that A divided by sine of angle, यानी कि किसी भी 8 का opposite angle है 62.2. So 8 divided by 62.2, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे the final answer is 9.04. Similarly B divided by, यानी कि 5 divided by 33.5. So you can see here that इसको आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं कि 5 का अपोजिट जो एंगल है वो ये है 33.5, और जो लास्ट वन है 9 का अपोजिट एंगल है वो है 84.3. सो अब आप देख सकते हैं इन सब का आंसर जो है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है. दे वुड बी एग्जैक्टली द सेम इफ़ वी यूज़ द परफेक्ट एक्यूरेसी. ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट इसलिए अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, जस्ट हम अप टू 2 और 3 पॉइंट्स तक जा रहे थे. इस वजह से इसके थोड़ा बहुत ये 0.04, 0.06, 0.05 का डिफरेंस आ रहा है. अदरवाइज it would be perfectly accurate. सो इसी तरीके से आप किसी भी ट्राइंगल की वैलिडिटी आप इसको चेक कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी हियर दैट इन दिस ट्राइंगल, इसके अंदर भी वी हैव ट्राइड टू मैनिपुलेट बोथ ऑफ देम. हमने राइट एंगल ट्राइंगल को, फॉर एग्जाम्पल ये नॉट राइट एंगल ट्राइंगल था, इसको हमने बाइसेक्ट किया और अब आप देख रहे हैं 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स ड्रॉ किए और फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई किया. और अप्लाई करने के बाद जब हमने रीअरेंज किया ए और साइन ए की फॉर्म में आंसर को लेके आए, ये देख रहे हैं यहाँ पे स्टेप में, तो फिर भी आपके पास लॉ ऑफ साइन जो था वो डिराइव हो चुका है. लॉ ऑफ साइन आप हर किस्म के ट्राइंगल पे अप्लाई कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप इसको सिर्फ उन ट्राइंगल्स के पे अप्लाई करें जो नॉट राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. ठीक है, सो यू कैन सी हियर कि हम बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से स्टार्ट हुए और उसके बाद फाइनली हमने लॉ ऑफ साइन को प्रूव किया इस स्लाइड के अंदर. बट द बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि आप जो नॉट राइट एंगल ट्राइंगल था उसको बाइसेक्ट किया इनटू 2 इक्वल राइट एंगल ट्राइंगल्स और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आपके पास आपका सोल्यूशन आ गया. Now let's solve this example. इसमें you can clearly see here that you have to find out C. Now C divided by opposite angle क्या है, sine of angle 105, because C का जो opposite angle है वो है ये वाला. ठीक है, और equals to 7 divided by sine of 35. So if we rearrange it, अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये क्या बन जाएगा, C जो है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, 7 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 35. आप पॉज करके भी इसका पहले सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं. मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 105 सॉरी. तो यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. यू कैन सी द कैलकुलेशन. इस कैलकुलेशन को देख के आपने वो नहीं होना, जस्ट सी द फाइनल आंसर. इट विल बी 11.8. इट विल बी 11.8. जो फाइनल आंसर आपको उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा वो है 11.8. नाउ द क्वेश्चन हेयर इज कि अब आपको इस तरह का कोई भी ट्राइंगल गिवन हो
तो और आपको साइड्स गिवन हो और एंगल्स गिवन हो या एंगल्स गिवन हो, दो एंगल्स गिवन हो और उनकी अपोजिट साइड्स गिवन हो, तो आप जो भी कोई एक अननोन चीज़ होगी उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ साइन। नाउ इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें और एंगल ए और एंगल बी सॉल्व सिंप्लीफाई करें। सिमिलरली ये दो एग्जांपल्स हैं, इन दोनों को आपने खुद अटेम्प्ट करना है। और इसमें फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ए बी सी था, उसके आपने एंगल ए और एंगल बी को फाइंड करने की कोशिश करें। एंड देन सेकंड में आपके पास है एंगल पी क्यू आर, इसमें जस्ट सिंपली ट्राई टू फाइंड आउट एंगल पी। ठीक है, इसमें हिंट ये है, आपको सिर्फ मैं एक हिंट देना चाह रहा हूँ और वो हिंट ये है कि जब आप एंगल बी को सबसे पहले फाइंड करेंगे और अब एंगल ए को फाइंड करने के लिए आप सिंपली इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल ए आ जाएगा। एंड देन इसकी बेस पे आप इसकी अपोजिट साइड फाइंड करेंगे। यही काम आपने दूसरे सेकंड ट्रायंगल के अंदर भी करना है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपका आंसर ठीक है, जो भी आपका आंसर आ रहा है, यू कैन शेयर इट इन कमेंट सेक्शन। सिमिलरली ये भी एग्जांपल है, सो यू कैन सी हेयर कि अब इसमें इसका सॉल्यूशन है एंगल बी के लिए, वो 49.6 आ रहा है फाइनल आंसर मेरा। और इसी तरह इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है फाइनल आंसर आपके पास 67.1 आ रहा है। सो होपफुली आपके भी अगर सेम आंसर आया है तो प्लीज़ इसको कमेंट में शेयर करें, और अगर आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा तो यू कैन सी द वर्किंग हेयर। नाउ लेट्स डिस्कस द लॉ ऑफ कोसाइन। नाउ लॉ ऑफ कोसाइन, let's say if you have the same triangle and if I ask you to find out how to use the law of cosine to find out the side C, so law of cosine को याद रखना भी इसको जो स्टेटमेंट है, जो ये सी स्क्वायर प्लस इसको याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बल्कि इसके कॉन्सेप्ट को पिक करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये सी साइड फाइंड करनी हो तो सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, माइनस 2ab। यहाँ तक तो बात बड़ी सिंपल सी थी इसको याद रखने के लिए, यानी कि जो जिस साइड को फाइंड कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड्स का स्क्वायर लेके उनको ऐड करना है एंड देन माइनस 2ab करना है आपने। ab मीन्स के जो अपोजिट दो साइड्स थी, इनटू कॉज ऑफ। नाउ कॉज ऑफ कौन सा एंगल लेंगे, जिस साइड को आप फाइंड करना चाह रहे हैं उसके अपोजिट एंगल को आपने लेना है, जैसे कॉज ऑफ एंगल सी। तो नीचे आप ये फाइनल जो है आपके पास फॉर्मूला है उसमें भी आप ये देख सकते हैं, -2ab cos of angle C. Now use cosine rule to find out this angle. तो इसमें तो ये क्वाइट क्लियर है कि आपको पता है कि A आपके पास क्या है, B आपके पास फिर क्या है। अगर आपको नहीं भी पता फिर भी अगर आप देखें तो ये C फाइंड करना हो तो C कैसे फाइंड करेंगे, C स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 11 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 211 इंटू 8 cos ऑफ 37। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसका जो फाइनल आंसर आएगा, इसको पॉज करके आप अपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, और जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है वो है 6.67। सिमिलरली व्हाट इज द एंगल सी। इस क्वेश्चन के अंदर अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, आपको तीनों साइड्स गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल।
सो इसमें भी आपने सिंपली परेशान नहीं होना। अब आपने सिंपल ये देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने एंगल, आपको ये एंगल फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि आपने इसकी अपोजिट साइड को यूज करना है। जैसे कि ये होगा, इट विल बी 8 स्क्वायर इक्वल्स टू दो अदर साइड थी 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अच्छा, इस पे आपने परेशान नहीं होना है कि ये जो साइड्स हैं, जो जो दो अदर साइड्स हैं, उसको आप उसकी सीक्वेंस कुछ भी रख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, बिकॉज हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करती। ठीक है, सो इनटू कॉज ऑफ एंगल सी, कॉज ऑफ एंगल सी। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो आप इजीली एंगल सी फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये याद रखिएगा कि बोर्ड मास को आपने निगलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे आपने इन दोनों को पहले ऐड करना, मतलब स्क्वायर लेके उनका ऐड करना है और देन उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे इनको ऐड कर, स्क्वायर लेके ऐड करते हैं और देन इनको माइनस करने की कोशिश करते हैं, बट ये याद रखिएगा कि -2 5 इंटू 9 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सो पहले जब तक इनको आपस में ज़ाहिर है मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कॉज ऑफ एंगल सी इज नॉट गिवन टू यू। सो आप क्या करेंगे, इट विल बी लाइक दिस, 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू -2 5/9 5 इंटू 9 कॉज ऑफ एंगल सी। ठीक है, सो फाइनली जब आप इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर होल इज डिवाइडेड बाय, बिकॉज ये पूरी चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इग्नोर करते हैं और इस वजह से अक्सर उनको आंसर में प्रॉब्लम आती है। कॉज ऑफ एंगल सी। सो अब फर्दर इसको रीअरेंज करके कॉज को साइड ले जाके इनवर्स फाइंड करेंगे और आपका इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो सी द सोल्यूशन लेटर ऑन। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह की एग्जाम्पल है, वो आपने खुद अटेम्प्ट करना है। पॉज करें वीडियो को और यू हैव टू सॉल्व द सेकेंड वन, ताकि आपको आइडिया हो कि लॉ ऑफ कोसाइन से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नाउ इसका आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे इसका फाइनल आंसर है 62.2 डिग्रीज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का, और इसका तो हमने खैर कॉन्सेप्ट भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया था कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्रॉपर ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स ही कर दिए थे। बट इसका जो आंसर है 62.2, अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है इट मीन्स कि आप कॉन्सेप्ट को पिक कर रहे हैं, और अगर आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा तो थोड़ा सा बैक करके इसको दोबारा उसका जो मैंने सोल्यूशन डिस्कस किया है उसको देखें, और फिर भी नहीं क्लियर हो रहा तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ ये सेकंड वन का सोल्यूशन था, सेकंड का भी सोल्यूशन ये देख सकते हैं। इसका जो फाइनल आंसर है वो 57.2 डिग्रीज है। तो इसको जो है आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं खुद। अगर आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ रिकमेंडेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम D4 जो 7th एडिशन की बुक है ओ लेवल्स की, उसमें जो रिकमेंडेड क्वेश्चंस हैं वो ये वाले क्वेश्चंस हैं। सो इन क्वेश्चंस को प्लीज़ अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। और एक पास पेपर का भी क्वेश्चन है, पेपर 2 का है, 2016 का है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये अपने पास प्लीज़ नोट कर लें। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके,
Now at the end of each lesson, each video, you must ask few questions from yourself that what you have learned today. Today we have discussed the basic concept of trigonometry, and then we have discussed the trigonometric ratios, and after that we have discussed the law of sine and law of cosine. If you have any question you can ask it in the comment section. हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था आखिर उस और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन रिकमेंड भी किए हैं. सो उनमें आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन. So hopefully you have enjoyed the lesson, and if you have any question please do ask it in the comment section, and if you have liked the video then please subscribe the channel and press the bell icon. Otherwise please do share the feedback in the comment section. Thank you.